Morning students. In our previous video we had seen what all are the factors that affect the value of goodwill and classification of goodwill. We had seen that goodwill is classified into two main types, that is purchased goodwill and self-generated goodwill. Purchased goodwill is that goodwill for which we have paid the consideration in cash or kind, and self-generated goodwill is the goodwill which is earned by our own effort. Now in today's video we will see what all are the methods for valuation of goodwill. We know that generally we show only purchased goodwill in the balance sheet. Self-generated goodwill is not shown in the balance sheet because it is earned by our own effort, and we can't exactly say what will be the amount of self-generated goodwill. But purchased goodwill, as we had paid cash or kind for the purchase of goodwill while buying the business, so we know the exact amount which we have paid for buying the business, the extra amount which we have paid. Then the net worth, that is net asset of the business, that extra amount is the goodwill. So we know the exact amount of goodwill. So purchased goodwill can be shown in the balance sheet because we had paid consideration in the form of cash. Now, well, calculation of purchased goodwill, generally we follow three methods. We know that goodwill calculation is subjective. It means we don't know what will be the goodwill of any firm. We cannot exactly state the goodwill of any firm. हम exactly किसी भी फर्म की गुडविल को नहीं बता सकते कि इस फर्म की गुडविल इतने अमाउंट की है. गुडविल कितनी होगी जब हम किसी का बिजनेस खरीदेंगे, तो उस टाइम पे अगर हम उन्हें उनके नेट एसेट से ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट गुडविल होगा. बट कितना एक्स्ट्रा पे करना है वो डिपेंड करेगा ऑन द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. हर एक फर्म का मेथड वैल्यूएशन का अलग होगा. दैट्स वाई कहीं पे भी हम फिक्स अमाउंट नहीं बता सकते कि इस फर्म की गुडविल इतने अमाउंट की है. The value of goodwill depends upon the method which is used by the firm. It may be either stated in the partnership deed that which method is to be used, or it can be decided by the partner. In general, there are three methods for valuation of goodwill. First method is average profit method, second is super profit method, and the third method for valuation of goodwill is capitalization method. And in today's video we are going to see the first method for valuation of goodwill, that is average profit method. After going through this topic, you will be able to understand how to value the goodwill by using average profit method. So let us start. Yes, average profit method. Goodwill under average profit method can be calculated either by simple average profit method and weighted average profit method. There are two ways to calculate goodwill by average profit method. First, simple average profit method, and the second one is weighted average profit method. In the first method, you use the average profit of some given previous years, and with the help of that average profit you calculate goodwill. Whereas in weighted average profit method, every previous year which is used for valuation of goodwill is given certain weightage, and after that you calculate goodwill with the help of weighted average profit method. First, today we will see how you are going to calculate goodwill with the help of simple average profit method. So
Generally, you have to follow 4 steps for valuation of goodwill through simple average profit method. It is very easy method for valuation of goodwill. So you will calculate goodwill in 4 steps by simple average profit method. First step for valuation of goodwill will be calculation of normal business profit. जब आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हो फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल, तो उस टाइम को पे आपको प्रीवियस कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दिए होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप 2020 में गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहते हो, तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको पास्ट कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा. फॉर सपोज पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया है, दैट इज़ फॉर द ईयर प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019 दिया हुआ है, 2018 दिया हुआ है, 2017 एंड 2016. यानी अगर आप गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो तो कितने ईयर का एवरेज निकालना है, उतने ईयर्स का प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दिया होगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको प्रीवियस कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा. देन फर्स्ट स्टेप विल बी टू कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट. यानी अब आपको प्रीवियस ईयर्स के कुछ प्रॉफिट दिए होंगे, उस प्रॉफिट के हेल्प से आपको नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. अब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है, यानी जो आपको प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं. कभी कभी ये होता है कि किसी ईयर में आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है या एबनॉर्मल लॉस हो जाता है. अब इसका मतलब क्या होता है कि सपोज यू हैव बीन गिवन प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स. जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे 2019 का प्रॉफिट दिया है, 2018, 2017 एंड 2016. अब अगर आपको पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया गया है क्वेश्चन में है, जिसमें आपको कहा है कि प्रॉफिट जो है वो 2019 का जो प्रॉफिट है वो है ₹1 लाख. बट 2019 में आपके गोडाउन में आग लग गई थी और 20,000 का गुड्स का नुकसान हो गया था. इट मीन्स लॉस बाय फायर वॉज ₹20,000. तो सपोज अगर ये 20,000 का लॉस आपको नहीं हुआ होता तो आपका 2019 का प्रॉफिट कितना होता. तो आप वो लॉस का अमाउंट इसमें ऐड कर देते तो आपका प्रॉफिट होता 1,20,000. तो क्या ये आग लगना एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है? नहीं. तो ये एबनॉर्मल लॉस है. तो बिजनेस को इस टाइप के लॉस हमेशा नहीं होते हैं. तो जब भी आपको क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट दिए होंगे फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उस टाइम पे अगर एडजस्टमेंट में ये भी कह रखा है, कुछ एडजस्टमेंट दी है, जैसे कि इन पर्टिकुलर ईयर गुड्स वर लॉस्ट बाय फायर और यू हैव सोल्ड एसेट. अगर हम यहीं पे बात करते हैं फिर से कि जो हमारा ईयर है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, 2019 एक ईयर था, 2018 था, 2017 एंड 2016. तो हमने इन 4 ईयर्स का प्रॉफिट आपको दे रखा है, जिसमें कि आपको कहा था कि 2019 में आपका प्रॉफिट 1 लाख था, बट इस ईयर आपको 20 lakhs का गुड्स आपका लॉस बाय फायर था. तो आपने क्या किया, अगर ये नॉर्मल ही नहीं होता तो आपका प्रॉफिट 1,20,000 होता. तो आपने ये 20,000 ऐड करके नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. यानी अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो आप फर्स्ट स्टेप में जो प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है उसमें ऐसे लॉसेस को ऐड कर दोगे. और अगर कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है, जैसे कि प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ एसेट, अगर एसेट बेच के कोई प्रॉफिट हुआ है तो क्या ये आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट है?
नहीं, आपका बिजनेस है गुड्स बेचना, ना कि एसेट्स बेचना। और एसेट बेच के अगर आपने एक्स्ट्रा कमाई की है तो वो आपके गुडविल को नहीं बढ़ाती। तो आपका प्रॉफिट जो ज़्यादा शो हो रहा है दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट अर्न ऑन सेल ऑफ एसेट। सो दैट्स वाई यू विल फर्स्ट डिडक्ट दैट अमाउंट। अगर सपोज आपको प्रॉफिट हुआ है एसेट बेच के 10,000 रुपये, तो वो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है। दैट्स वाई यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट सच एबनॉर्मल प्रॉफिट। यानी नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी ईयर का, तो गिवन प्रॉफिट में एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर दो और एबनॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल थ्रू एवरेज प्रॉफिट, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट आप सबसे पहले क्या करोगे, यू विल राइट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पास्ट ईयर। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, प्रीवियस ईयर का जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा वो आप लिख लोगे। देन आपका ऐड करना है सारे एबनॉर्मल लॉसेस, जो भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, जैसे कि लॉस बाय फायर या चोरी होने से हुआ लॉस, या फिर या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट बेच के अगर लॉस हुआ है तो वो भी आपका एबनॉर्मल लॉस है। देन ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आपका ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा शो हो रहा है, और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपने अगर कम शो कर रखी है तो ये आपके प्रॉफिट को कम शो करता है, तो ये भी एबनॉर्मल लॉस में ही आएगा और आप ऐसे लॉसेस को ऐड करोगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यू नो द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंडिचर मेड ऑन परचेज ऑफ एसेट, ऐसा एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दैट इज रेगुलर एक्सपेंडिचर में शो किया है, तो ये भी आप ऐड कर दोगे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल कोर्स प्रॉफिट और लॉस। That's why you're going to add abnormal losses. Anything which is not related to the main course of business will be added. And आप लेस करोगे abnormal gain, यानी ऐसा गेन जो जनरली बिजनेस रिलेटेड नहीं है, आपकी जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड नहीं है, ऐसे प्रॉफिट को आप माइनस कर दोगे। क्योंकि जो भी पर्सन आपका बिजनेस खरीदेगा वो उसे एक्चुअल प्रॉफिट जानना है, नॉर्मल प्रॉफिट जानना है। अगर आप उसे बता रहे हो मुझे पिछले साल 2 लाख का प्रॉफिट हुआ था, बट अगर वो पूछे कि कैसे, गुड्स बेच के वो प्रॉफिट हुआ था, नहीं मैंने एसेट बेची थी और उससे मैंने कमा लिया, तो क्या वो पर्सन आपके बिजनेस खरीदते वक्त इसको नॉर्मल प्रॉफिट मानेगा? नो, ही विल नॉट कंसिडर इट एज अ नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि उसे मेन बिजनेस एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट होता है वो ही नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। सो अगर कोई भी एबनॉर्मल गेन है, जैसे कि एसेट बेच के आया हुआ पैसा, या ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर आप अपने क्लोजिंग स्टॉक को ज़्यादा वैल्यू में दिखा रहे हो तो ये भी आप एबनॉर्मल गेन में ही समझोगे और उसे भी लेस करोगे। नो नॉन रिकरिंग इनकम, द इनकम विच इज़ नॉट गोइंग टू रिकर इन नियर फ्यूचर, और आगे चल के वो इस तरह का प्रॉफिट आपको नहीं होने वाला है। देन पार्टनर्स रेम्यूनरेशन if it is not paid, that you will add less. Then any future expenses like insurance premium etc, ये सारी चीज़ें आपको माइनस करनी है। तब आएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी ये वो प्रॉफिट है जो फर्म नियर फ्यूचर में भी कमाते रहेगी। एक्चुअली जो आपका गुड्स बेच के जो प्रॉफिट हुआ है वो होगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ज़रूरी नहीं है सारे ईयर का प्रॉफिट आपको एडजस्ट करना पड़े। क्वेश्चन में आपको बताया होगा कि आपको कौन से ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट करना है, यानी क्वेश्चन आपको क्लियरली अगर 4 ईयर्स का प्रॉफिट दे रहा है तो 4 ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, किसी 1 या 2 ईयर में एडजस्टमेंट होंगे, और एडजस्टमेंट इस तरह से करना है, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड एंड एबनॉर्मल गेन्स को लेस। दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप, और फर्स्ट स्टेप के बाद आपको क्या मिलेगा,
adjusted profit. Now second step will be to calculate एवरेज प्रॉफिट. अब सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में जब आप प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को एडजस्ट कर लोगे, आपके पास आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट. अब आप उस एडजस्टेड प्रॉफिट्स का, यानी पिछले 4 इयर्स का अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं 2019, 18, 17 एंड 16, तो इन चारों के प्रॉफिट को आपने जो एडजस्ट किया है, इसका आप एवरेज निकाल लोगे. तो एवरेज किस तरह से निकालते हैं हम? सारे ईयर्स के प्रॉफिट को, यानी टोटल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट यानी एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला है, 4 इयर्स है तो चारों ईयर्स के प्रॉफिट का एडिशन आप करोगे और उसे डिवाइड कर दोगे बाय नंबर ऑफ ईयर्स. नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4. तो ये 4 इयर्स के प्रॉफिट को आप ऐड करोगे एंड डिवाइड इट बाय 4 बिकॉज नंबर ऑफ ईयर्स आर 4. देन थर्ड स्टेप विल बी टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर परचेज. अब ये क्या होता है? जनरली नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्वेश्चन में दिया होता है, बट व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर परचेज? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज जो होता है, ये एक अजम्पशन होता है कि आप अगर ये बिजनेस खरीद रहे हो आज, तो आने वाले कितने समय तक आप सेम प्रॉफिट कमाते रहोगे ड्यू टू द पास्ट एफर्ट्स पुट बाय द पर्सन हु हैव रन द बिजनेस टिल नाउ. यानी जो आप अगर नया बिजनेस शुरू करते तो आपको आने वाले कितने साल लग जाते इस प्रॉफिट को अर्न करने में, जो आप अभी विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट यू विल बी एबल टू अर्न. यानी अगर आपने एक बिज़नेस खरीदा है और आपको उस बिज़नेस के नॉर्मल प्रॉफिट को देखते हुए लग रहा है कि ये बिज़नेस हर साल 1-1 लाख रुपए कमा रहा है, तो अगर आप उनका बिज़नेस नहीं खरीदते और अपना खुद का कोई बिज़नेस शुरू करते, तो आपको आगे कितने साल लग जाते 1 लाख प्रॉफिट कमाने में. तो उसको कहा जाता है नंबर ऑफ ईयर परचेज. तो ये क्वेश्चन में आपको दिया होता है 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज और 4 इयर्स परचेज. जितना भी आपको क्वेश्चन में दिया होता है वो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज लेना होता है. देन फोर्थ एंड लास्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग वैल्यू ऑफ गुडविल. यानी फोर्थ स्टेप में आके आप गुडविल फाइंड करोगे. अब गुडविल फाइंड करने का फॉर्मूला आपका क्या है? एवरेज प्रॉफिट जो आपने सेकेंड स्टेप में निकाला है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज. यानी 2 इयर्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 2, 3 इयर्स है तो मल्टीप्लाइड बाय 3. So average profit multiplied by number of year purchase. This will be the formula to calculate goodwill. So let us see this with the help of an example. First step to find the normal profit. Normal profit कैसे मिलेगा? जो प्रॉफिट एक क्वेश्चन में दिया है उसमें ऐड एबनॉर्मल लॉसेस एंड सब्ट्रैक्ट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स. सेकेंड में एवरेज फाइंड करना है, जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट है एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से. थर्ड स्टेप में नंबर ऑफ ईयर परचेज जो क्वेश्चन में दिया होगा, एंड लास्ट स्टेप में गुडविल फाइंड करना जिसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट जो हमारा सेकेंड स्टेप में आया है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड. Let us see with the help of an example. Now question, read the question carefully. Hari and Krishan were partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in the profit. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchased. On the basis of 3 years purchased of the last 5 years average profit. The profit for the last 5 years were 2013-14,
50,000, 2014-15 40,000, 2015-16 75,000, 2016-17 it is in minus, that is loss of rupees 25,000, and 2017-18 50,000. Calculate goodwill of the firm after adjusting the following. The profit of 2014-15 was calculated after charging rupees 10,000 for abnormal loss of goods by fire. Now note down this question in your notebook. अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि हरी एंड कृष्ण ये दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। अब आपने एडमिशन दिया है शाम को पार्टनरशिप में फॉर 1/5 शेयर। अब अगर आप किसी थर्ड पार्टनर को, हमने देखा था कि किस वजह से आपको गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप एडमिशन दे रहे हो नए पार्टनर को, तो नया पार्टनर तो आते ही प्रॉफिट में हिस्सा लेना शुरू कर देगा। अगर वो अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करता तो उसे टाइम लगता ना प्रॉफिट कमाने में, बट यहाँ पे वो आते ही प्रॉफिट में हिस्सा लेना शुरू कर देगा और वो हिस्सा हरी और कृष्ण सेक्रीफाइस करेंगे, यानी अपने हिस्से में से वो दे रहे उसे। तो दैट्स वाई शाम उन्हें गुडविल ला के देगा, गुडविल के रूप में कुछ पैसे ला के देगा। तो कितना लाएगा उसके कैलकुलेशन को आपको कहा गया है कि यहाँ पे गुडविल जो है वो 3 years परचेज जो कि हमें थर्ड स्टेप में चाहिए होता है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, यानी पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट का 3 years परचेज। ओके, देन यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट भी बताई है कि 2014-15 का जो प्रॉफिट है उसमें 10,000 का एबनॉर्मल लॉस है, यानी 2014-15 में आपको 10,000 का एबनॉर्मल लॉस हुआ था, यानी वो लॉस जो नॉर्मल बिजनेस का नहीं था। इसका मतलब एबनॉर्मल लॉस आपको यहाँ पे 10,000 ऐड करना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पे 10,000 ऐड कर दोगे तब आप इन सब का एवरेज निकालोगे, यानी 50,000 प्लस 40,000 प्लस 75,000 प्लस माइनस 25,000। सी इट केयरफुली कि 2016-17 में आपको लॉस हुआ है, तो 25,000 नेगेटिव में है, तो 75,000 प्लस माइनस 25,000, यानी यहाँ पे आप भले इसे एवरेज निकालते वक्त ऐड कर रहे हो, बट बिकॉज इट इज़ इन नेगेटिव ये माइनस होगा। और 50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3 4 5, डिवाइड द टोटल बाय 5, आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा और एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी योर अमाउंट ऑफ गुडविल। सो लेट अस सी, पहले आप कैलकुलेट करते हो नॉर्मल प्रॉफिट, तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए आप कॉलम बना लो, ये है हमारे ईयर, यहाँ पे आप एडजस्टमेंट करोगे जो एडजस्टमेंट आपको करनी है, और फिर बाद में एडजस्टेड प्रॉफिट आप लिखोगे इन थर्ड कॉलम। नाउ सी, क्योंकि 2013-14 में कोई एडजस्टमेंट नहीं बताई गई है, कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं था, तो एडजस्टेड प्रॉफिट हुआ हमारा यहाँ पे 50,000 ही। यस, नाउ 2014-15 के लिए आपको कहा गया था कि देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ 10,000। यस, तो 2014-19 का प्रॉफिट था 40,000, उसमें आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो, क्योंकि ये ऐसा लॉस था जो जनरली हमेशा नहीं होता, तो ये आपके प्रॉफिट को कम शो कर रहा था, दैट्स वाई आप उसे ऐड कर दोगे और टोटल हो गया आपका 50,000। देन 2015-16 में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो एज इट इज़ 75,000। 2016-17 में आपको लॉस हुआ है, 2016-17, सी केयरफुली, 2016-17 में आपको लॉस हुआ है, तो आप इस लॉस को जब एवरेज निकालोगे तो आप
सब्ट्रैक्ट करोगे। 2017-18 में आपको प्रॉफिट हुआ है 50,000 का। नाउ कैलकुलेट एवरेज, एवरेज निकालो, इन सबको ऐड करना है आपको। ये सारी चीज़ें ऐड की जाएगी। 50,000 प्लस 50,000 प्लस 75,000 and minus this 25,000 because it is loss, and plus 50,000, total will be 2 lakh rupees. Is it clear? Now next, नंबर ऑफ ईयर परचेस आपका पहले से ही क्वेश्चन में दिया है। अब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है आपका? एवरेज प्रॉफिट है आपका टोटल प्रॉफिट, दिस टोटल प्रॉफिट 2 लाख रुपीज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। कितने ईयर्स का प्रॉफिट है आपका? 5। तो टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर, टोटल इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 5, आंसर विल बी 40,000। अभी ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। पहले स्टेप में हमने क्या फाइंड किया? एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप में हमने फाइंड किया एवरेज प्रॉफिट। थर्ड स्टेप में हम फाइंड करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 इयर्स परचेज, यानी आने वाले 3 साल तक शाम को बिना एफर्ट किए हरी और किशन के एफर्ट्स की वजह से 3 साल तक ये प्रॉफिट होगा, जिससे कमाने में उसे 3 साल लग जाते। तो गुडविल आपका क्या होता है? अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आया है? 40,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3, 40,000 इंटू 3 1,20,000। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ गुडविल that Shyam will pay to Hari and Kishan. Hope you must have understood this topic. Practice as many questions as you can.